Hello student, my name is Shashikala. Today I am going to teach you social science lesson number 0, Introduction to Social Science part 6, different stages of human development. Different stages of human development, hunting age जिसे हम शिकारी युग कहते हैं, विलेज लाइफ यानी कि गांव का जीवन, टाउन लाइफ and city life. Let's see. First we see hunting stage. Many clues that have been provided to us by archaeology have helped us to reconstruct our prehistory. This type of life was called primitive because people depended on nature for their livelihood. These early human beings began life as hunters, preying upon beasts, birds, fish and insect for food, just as wild animals in the jungle do. They lived only as a hunter for hundreds of thousands of years. This stage in history was called the Stone Age. This period was also marked by tending of domesticated animals. This gave people an assured food supply and also some new food items like milk, butter and cheese. For the people, life was much more secure now than it had been. When they were hunters, beside tending of animals was a much lighter work than hunting. People had leisure to think about other matters, but they still had to live like nomads, moving from one place to another in search of food. They had to look for a new pasture for their cattle when the previous ones were eaten up by the animal. जैसे हमने रीड किया हंटिंग स्टेज, इसे शिकारी युग कहते हैं. ऐसी कई घटनाओं को हमने पुरानी चीजों को ढूंढने वालों ने को मिली है, जिसमें हम अपने पुराने जीवन के बारे में जान सकते हैं. जिन्होंने रिसर्च की है उनको मिली है. इस प्रकार की जिंदगी को हम पूर्व आदम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी जिंदगी में मनुष्य जो है पूरी तरह से वातावरण पर निर्भर था. और मनुष्यों ने अपने जीवन के लिए जानवरों को, पक्षियों को और मच्छियों का शिकार करना, जैसे जानवर का वो शिकार करता था, वह शिकारियों की तरह कई वर्ष तक रहे. और ये शाखा पत्थर युग कही गई थी. और यही वह समय था जब पशु पालने की शुरुआत की गई. और यही वह समय था जब लोगों को खाना मिलने की पूरी उम्मीद थी कि अब उनको खाना मिलना शुरू हो गया है. फिर कुछ नई चीजें जैसे कि दूध, मक्खन और चीजें उनको मिलने लगी थी. लोगों के लिए जिंदगी अब काफी सुरक्षित थी पहले के मुकाबले, क्योंकि जानवरों की देखभाल करना शिकार करने से कई आसान था. मनुष्य के पास अब सोचने के लिए समझ थी, लेकिन उनको फिर भी एक जगह से दूसरी जगह अपने जो जानवरों के साथ चारे के लिए घूमना पड़ता था. नेक्स्ट है विलेज लाइफ या रूरल. विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर came the opportunity for settled life. People discovered that they could sow seeds in the soil and make them grow into the plants. This technique enabled them to grow their own food at one place. Now they could have a permanent settlement, which later took the shape of village, where civilizations in the modern sense was born. This can also be termed as the rural stage. जैसे मैंने कहा विलेज लाइफ या गांव का जीवन, खेती बाड़ी की वजह से मनुष्य एक जगह पर रुक कर रहने लगे. इन्होंने सीख लिया था कि किस तरह चीजों को जमीन में बोकर फसल उगानी है, और इस तकनीकी से वह एक जगह पर रुक कर फसल उगाने लगे. अब उनके पास में रहने के लिए एक पक्की जगह हो गई थी, जिसने आगे चलकर एक गांव की शक्ल या गांव का रूप ले लिया, जहां से सभ्यता सही मायने में जन्म ली है. इसको हम देहाती या हम गांव की कला भी कह सकते हैं. टाउन लाइफ या अर्बन. फ्रॉम रूरल लाइफ इन अ विलेज एंड एग्रीकल्चर, human being
move toward urbanizations. At this stage, there was an immense growth in the populations. Human beings were no longer food gathering; they were now food producers. The group of families become larger and society were formed. Now there was no need for every family to work in the field and produce their own food. Those who were weavers, potters, or carpenters exchanged their product for food. There was a great improvement in their lives. Discovery of metal had led to specialization in preparing craft. Some artisans had better skill than the other did. They lead to the society satisfactions into skill and semi-skilled craftsmanship depending on the skills they possessed. By this time, metal like copper and bronze had been discovered. These were being used in producing articles essential for a comfortable life. शहरी जिंदगी देहाती जीवन में गांव में रहकर खेती करने के साथ ही मनुष्य शहरी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ा। इस तरह जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ मनुष्य केवल भोजन जमा करने वाला नहीं रहा, अब वो भोजन बनाने वाले बन गए थे। परिवारों का समूह बढ़ता गया और समाज बनने लगे। अब ये जरूरी नहीं था कि पूरा परिवार या सभी लोग खेती करें। उनमें से कुछ लोग कुम्हार थे, कुछ लोग कपड़ा बनाने लगे, कुछ लोग बढ़ाई का काम करने लगे, कारपेंटर जिसको हम कहते हैं। ये लोग अपने काम के बदले में अनाज का लेन देन करते थे। उनके जीवन में काफी बदलाव आ गया था। धातुओं की खोज से, जैसे कि मैंने बताया, लोहा और ये जो चीजें थी उसकी खोज से उनके जीवन में और तरक्की हो गई। कारीगर दूसरों की मुकाबले में अच्छे और बेहतर तरीके से औजार बनाने लगे। यही एक कारण था कि समाज में भी कुछ कुशल और कुछ बहुत अर्धकुशल जो कारीगर थे वो सामने आए। और इसी समय में धातु और जैसे कि तांबा और पीतल की भी खोज हुई थी। इन सब का इस्तेमाल जरूरी सामान बनाने में होने लगा था, जो कि एक आरामदायक जीवन व्यतीत करने के काम आने लगा था। Human beings use this skill in making craft like pottery, leather work, and masonry. People would get together at a convenient place to exchange their products. Even the farmer would come to sell their surplus grain and buy other necessities. This activity happened at a central place. At this stage of civilization, people look for more than just satisfying their need for food and engage in other activities such as weaving, pottery, and metals work. It was also the stage when iron was being discovered. Now there arose a need for structures and categorizations into smaller and specializations group. Division of labor took place on the basis of the work performance by them. Humans were now ready to move to the next stage of their extensions and development. The inventions of writing was a great step forward. Knowledge could now be passed forward from one generation to another. Writing was also needed for keeping record by the traders as also by the people who were looking after law and order in the village, town and cities. कारीगर अपनी कुशलता के साथ जो काम करते थे, जैसे बर्तन बनाने का, चमड़े का काम करते थे, राजगिरी करने का काम करते थे। इन सभी लोग एक साथ में एक जगह मिलकर अपना सामान का लेन देन करते थे। सामान जो है बदलते एक दूसरे को देते थे और यहीं पर किसान भी अपना अन्न बेचने व बदलने के लिए आते थे। ये सब काम एक केंद्रीय जगह, जो एक सेंट्रल जगह रहती है, वहां पर होता था।
सभ्यता की दौड़ में मनुष्य अपने भोजन की पूर्णता के साथ बर्तन, कपड़े और पुरानी जो भी चीजें हैं उनको खरीदने बेचने लगा। यह वो समय था जब जब लोहे की खोज हुई थी। अब एक ऐसा माहौल बनने की जरूरत पड़ी कि कार्य कुशलता के साथ छोटे बड़े समूह बनाए गए। यही वह समय है जब कार्य क्षमता के साथ विभाजन होने लगा। मनुष्य अब अपने जीवन में आगे बढ़ने और उन्नति की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे लेखनकार खोज करने लगे कि हमारी बढ़त का एक और बहुत ही जरूरी कदम था इसमें लेखन कला का मतलब होता है कि जो रिटर्न में उन लोगों ने नोट करना या लिखना शुरू किया। इसमें हमने यह सारी विद्या को लिखने वाली जो है अगली पीढ़ी जो पढ़ सके, मतलब जो भी वो रिकॉर्डेड जो भी हम पढ़ रहे हैं, सो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन लोगों ने लिखना शुरू किया ताकि वह इसका फायदा उठा सके। लिखना उन सभी लोगों के लिए जरूरी भी हो गया था जो व्यापार करते थे, क्योंकि जो भी लेन देन करते थे उसका व्यापार का जो है लिखना जरूरी था। और जो लोग गांव और कस्बों में रहते थे शहरों के कानून की देखरेख करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस। City life. Later, people started growing surplus grain and storing it for the future. This resulted in a lot of leisure time, which lead to the progress of civilization and culture. Art like painting, music, sculpture, and architecture's development. More decorative craft like metalwork and ornament making were introduced. Now that people had security and their basic needs were fulfilled, they could cater to their higher social and aesthetic needs. It was also the beginning of the concept of caste and class. From town development, more advanced and urbanized cities. So जैसे मैंने रीड किया हड़प सिटी लाइफ शहरी जिंदगी। धीरे धीरे किसानों ने अपनी जो है अन्न का पैदा करना या अन्न को उगाना शुरू कर दिया था और उनका जो है संचार भी करने लगे ताकि वो आगे का काम कर सके। इसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी के पास समय बचने लगा, जिसकी वजह से सभ्यता का विकास हुआ। तस्वीरें बनाना, मूर्तियां बनाना, संगीत और अन्य ऐसी कलाओं का भी विकास हुआ। अब जब लोगों के पास सुरक्षा थी तो उन्होंने क्या किया, निजी जीवन को चीजें पूरी होने लगी तो उनका ध्यान अब अन्य चीजों की तरफ गया। यही एक समय था जिसमें जब जातियां और उनके रहन सहन से उनका विभाजन होने लगा। लोग कस्बों में रहने लगे, जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट में। The earliest city to be discovered were Harappa and Mohenjo-daro, which are now in Pakistan. In India, some important city for these cities were at Ropar near Chandigarh, at Lodhal near Ahmedabad, and the third at Kalibangama in Rajasthan. These cities were well planned and had all facilities that were available at that time, such as roads that cut each other at right angles, drainage system and use of bricks. So जैसे हमने अभी पढ़ा कि कस्बों के जैसे विभाजन के बाद कस्बों से निकलकर एक शहरीकरण होने लगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है, कुछ ऐसे ही शहर थे भारत में। रोपर जो चंडीगढ़ के पास है, लोथल अहमदाबाद के नजदीक है, और कालीबंग जो कि राजस्थान में है। कुछ ऐसे ही शहर ये थे। ये शहर बहुत ही सोच समझ के बनाए गए थे और यहाँ सुविधाएं भी उपलब्ध है। इनमें पक्की सड़कें हैं जो कि एक दूसरे को त्रिकोण में काटती हैं, जो पानी निकालने की सुविधा है, और पक्की ईंटों से तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे
with the advancement in science and technology